Hello, good morning. Today, Good morning, sir. I will teach you file handling concept. And in file handling concept, I'll share screen for you first. I will share screen for you. The screen is shared now. मैं दिख रहा हूँ सही से? लाइट इज ओके क्योंकि यहाँ मुझे एक रूम दे दिया गया फ्री, तो उसकी भी मैं बढ़ा रहा हूँ. Come to the next point now. I was discussing about the modification, how to modify a record. Now, when you have to modify a record, you have to go to that particular position, seek the position, place the file object there, and then modify. Now, when you are modifying, the correct way of modification is first you display the record. Once the record is displayed onto the screen, then you take a decision. Do you want to modify? That means you have to take one more variable of your choice. And then you write, if you want to modify, yes, then it has to be entered a new value or any calculation takes place, and then the record is modified. So display first, take decision. If you don't want, no, and exit from there. So this type of logic you have to make in your projects. Okay, like if you want, do you want to cancel the ticket? Yes or no? तो modify होगा वहाँ पे या delete होगा, whatever it is. तो पहले पूछो उससे कि क्या करना चाहते हैं या नहीं. That and show that record to him. Like जो भी टिकट बुक करने जाता है तो स्क्रीन पे रिजल्ट पहले डिस्प्ले होता है कि क्या ये आपकी टिकट है, टिकट ये वेटिंग है, ये कंफर्म है, and then only that person books the press enter. Okay, understood? So that is why the Yes, record sir. has to be displayed before modification. So in different program I write different way. Okay. तो सर मतलब अपन वेबसाइट ही लिख रहे हैं, मतलब वेबसाइट ही बना रहे हैं एक तरीके से. वेबसाइट नहीं बेटा, we are doing programming, that is we are making application programs. We can make program for payroll, we can make program for result system, we can make वेबसाइट में बेटा वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये स्क्रिप्टिंग होगी जो हम ये प्रोग्राम वही मतलब जो पूरा मेन जो बेस होगा उस साइट का वो अपन बेस, वही लिख हाँ रहे बिल्कुल. हैं. देखिए उसमें वेबसाइट पे क्या होता है कि जो फ्रंट लुक है जो आपको दिखेगा वो एक अलग चीज है, फ्रंट एंड है, ठीक है. अब फिर उसके बैक में जो स्क्रिप्टिंग होगी, मतलब प्रोग्राम लिखे जाएंगे, वो मैं पढ़ा रहा हूँ. बेसिकली आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू डिजाइनिंग, rather I am teaching you scripting, programming. Okay, come to the point now. और टेक्निकल अब टर्म्स में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. Okay, so we'll start with our programming part. In my previous video, I have explained you in my business class. I have explained you about how to modify and delete a record. If still you have any problem, I will explain that again. For that, I'll open Python for you. Python. And I will teach you something more today. 3.8 was giving some errors, so 3.4 I will start. 3.4 ideally. So here I'll open that file. Where is that file? I don't know where. So see this program. What we are doing in this program? You pin me. Okay. So here. अपना बड़ा कर लो. So that okay. So here we have declared a class and so on. This class is not a part of your syllabus. Again, I'm telling you. Create and so on. Now in modify, what I told you, if you have to modify each record, what you have to do, you have to read a record, go to the position and then change. For everyone, this modification is modify the record of each and every one. Then once the emp.net, आपने सिर्फ emp.net किया है बेटा, आप चाहो तो जितने डेटा को अलग अलग इंडिविजुअली भी कर सकते हो, जैसे कि emp.gross like that, है ना.
तो जो चाहो चेंज कर सकते हो। और जब आप डंप करोगे तो अब ईएमपी के साथ वही होगा। मैंने आपको शायद अच्छी तरह समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्लास इज अ स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो जो भी कुछ भी आप इनपुट करोगे, एंटर करोगे, वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। भले से एक डेटा मेंबर भी करोगे तो वो ऑब्जेक्ट में ही जाएगा। तो अपने को राइट जो किया है यहाँ पे डंप किया है तो ईएमपी किया है। ईएमपी का मतलब अब जो डंप हुआ वो नेट नया वाला हुआ, ना कि पुराना वाला हुआ। क्लियर हो रहा है या नहीं? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, एंड यस देन सर। पीओएस इज इक्वल्स टू rf.tel, मतलब फिर से हमने पोजीशन को गेट किया उसी रिकॉर्ड के जो अभी प्रेजेंट था उसका एंड में पहुंचा था। एंड पहुंचने का मतलब सेकंड रिकॉर्ड की बिगनिंग हो गया, सेकंड रिकॉर्ड की पोजीशन पता चल गई। जब सेकंड रिकॉर्ड रीड हुआ तो वो चेक हुआ, उसकी डेटा वैल्यू आई, मगर फाइल ऑब्जेक्ट एंड ऑफ बिगनिंग ऑफ द थर्ड रिकॉर्ड था, मगर हमें सेकंड रिकॉर्ड की पोजीशन ऑलरेडी पीओएस में स्टोर कर रखी थी। सो दैट अब सेकंड रिकॉर्ड पे बस खत्म बात। मैं इसको बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा। आपके अलावा अगर कोई और भी पूछना चाह सकता है तो पूछ ले, जिसने भी क्लास ज्वाइन कर रखा है। तो वेटिंग में तो नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे भी हैं। नहीं, 3 क्या, मैं इंक्लूडिंग सानिध्य सचित, बाकी किसी को लगता है इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का। इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोचिंग में भी शायद इतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। RF is equals to open em dot rb m dot net wb। ओके, डिलीट ट्रैक का मेरा लॉजिक है, आप प्लीज नेट पे कुछ और ढूंढ लेना। मुझे तो ये लॉजिक चल गया तो मैंने, एंड यू नो दैट पाइथन प्रोग्रामिंग अभी लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुई है और इस बार फाइल में डिटेल था तो इसलिए ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार इतना पढ़ाया नहीं था, तो इसलिए रैक वगैरह डिलीट डिलीट सब पढ़ा रहा हूँ। तो डिलीट में क्या हुआ बेटा, डिलीट में रिकॉर्ड हमने जो फाइंड किया उस रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड टेम्परेरी फाइल में temp.net में राइट कर दिए यूजिंग द ऑब्जेक्ट wf। Once all the record are returned to temp, excluding the record which has to be deleted। फिर हमने क्या किया, जो ओरिजिनल फाइल थी उसको रिमूव कर दिया और जो अभी नई फाइल थी जिसमें रिकॉर्ड डिलीट करना था उसको छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड थे उसको रीनेम करके फिर ओरिजिनल फाइल बना दी। बस इतना सा काम। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन भी इनकी दे दी, यूज्ड टू रिमूव डेटा फाइल इन अ पाइथन प्रोग्राम, रीनेम ओल्ड फाइल टू न्यू फाइल। सर वो ओएस मॉड्यूल क्या है? OS is क्या बोलते हैं, मॉड्यूल है which provides your functions like remove, rename। मतलब अब आपको बोले ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिकली हमारे DOS से आ रहे हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह के फंक्शंस होते थे। यस OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉड्यूल का है जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, जैसे कि पूरी फाइल डिलीट करनी है, पूरी रीनेम करनी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप नॉर्मली वर्क करते हो डेस्कटॉप वगैरह पे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो यूजिंग दिस मॉड्यूल। ठीक है, आगे चलूं? यस सर। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। ये दोनों फंक्शन होपफुली कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैंने इसका वीडियो डाला था। 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन में अगर स्टिल यू हैव प्रॉब्लम विद टेलरेक, प्लीज आस्क मी और यू No आस्क sir, it's clear. 100%। शाबाश। So we are going to make a new program for you, new file, and import pickle की जरूरत है या नहीं, कर लेते हैं pickle, डंप करना पड़ेगा इस import pickle। Now what I'm doing here, as I said, I have no book, nothing, तो मेरे पास अभी ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एक एक करके प्रोग्राम लूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फायदा उठाओ, डिलीट। तो सबसे पहले मैंने, अब मैं, आप वहां पे कॉपी में नोट करो, बाइनरी फाइल यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग, उसमें क्या था, यूजिंग क्लास। अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लास था जो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं था, दिस इज या पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप आराम से फाइल को क्रिएट, डिस्प्ले, सर्च, मॉडिफाई कर सकते हैं, यही दिखाना चाहता हूं आपको। तो सबसे पहले वी हैव मेड अ फंक्शन डेफ क्रिएट emp equals to, now what we are doing, हो सकता है आपको ये ज्यादा आसान लगे क्योंकि क्लास बनाना ही नहीं है। So emp equals to curly bracket start close, please tell me what is the meaning of this statement? Come on, say Empty dictionary. empty dictionary।
आप मेरे साथ रहोगे तो आई विल रियली 3 स्टूडेंट्स आर देयर, तो मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। यू आर सो लकी दैट आप आराम से इतनी अच्छी तरह सीख रहे हैं। CF is equals to open emp.dat, फाइल ओपन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस वाला वही फंडा, वही यस। आप सोचोगे सर ये वाला लूप फॉर भी बना सकते हैं, तो फॉर की एक कंडीशन होती है बेटा, काउंट कंट्रोल लूप है 1 to 5 1 to 10 1 to 10। इसमें क्या है, जब तक आप यस करते रहोगे तब तक रिकॉर्ड इनपुट होता रहेगा। जो भी सब यस सर। रिजर्वेशन कर रहा है तो उसके पास कोई लिमिट थोड़ी नहीं है कि 5 ही रिजर्वेशन करेगा वो। तो जब तक बैठा है, जब तक उसकी ड्यूटी है तब तक वो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा तब तक करेगा, जब तक वो नो करके ड्यूटी खत्म नहीं होती तब तक वो करता रहेगा। समझ में आ रही बात? यस What सर। we have done, ENO is equals to INT, ये सिंपल वैल्यू एंटर किए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक एम्प्लॉय नंबर, ए नेम, सेल। नो सर। नो सर, आप इसमें तो कोई उसी दिक्कत तरह नहीं, से तो 10th का कैलकुलेशन मतलब 11th का ही है। कर सकते हैं जो पहले की थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या नो किया, सर। वही जो पहले आपके 11th में पढ़ाया था, EMP NO क्या हुआ, रिवाइज कर वो लो। सर जाके डिक्शनरी में रजिस्टर हो गया। डिक्शनरी में मतलब की यस EMP NO क्या है? हाँ की कीवर्ड। हाँ एंड सर। कीवर्ड नहीं, की EMP हाँ NO मतलब वो की, हाँ मतलब वही सॉरी। की ENO क्या है? उसकी डेटा वैल्यू एंट्री। डेटा वैल्यू। हाँ डिक्शनरी वर्क्स ऑन 2 कॉन्सेप्ट, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। EMP नेम की, ई नेम वैल्यू, सैलरी की, सेल वैल्यू। ये वैल्यू जब अपन इंटर कर रहे हैं डिक्शनरी में, पहली वैल्यू तभी क्रिएट हो रही है व्हेन वी आर एंटरिंग रन टाइम पे। प्री डिफाइंड डिक्शनरी नहीं है, प्री डिफाइंड में एम्प्टी डिक्शनरी है, वी हैव डिक्लेयर्ड एम्प्टी डिक्शनरी। गॉट इट? यस सर। नाउ वी आर राइटिंग हियर pickle.dump emp, cf, emp, cf। क्या मतलब हुआ? सेम वे तो जैसे, मतलब पूरी डिक्शनरी उठा के उसने CF वाली फाइल में डाल दी। इन अदर वर्ड्स ये ऑब्जेक्ट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ फील्ड ऑफ वैल्यू हुई, डेटा मेंबर उसकी कुछ वैल्यू आई। अब देखिए मैंने जो क्लास पढ़ाया था उसमें क्या था कि सारी चीजें एक जगह इनकैप्सुलेट हुई थी। अब इसमें क्या हुआ कि आपके कहीं पर प्रोग्रामिंग हो रही है फंक्शन के अंदर, हमने वहां पे सिर्फ लिखा था emp.input, तो सारी वैल्यू इनपुट हो गई। मगर यहाँ पे हमें इंडिविजुअली अगर 100 फील्ड्स भी है इनपुट करना क्रिएट के अंदर ही है। उसमें क्लास के अंदर था, हमने सिर्फ एक मेंबर फंक्शन को कॉल किया था emp.input, और emp.input हो गया, फिर emp डंप कर दिया। समझ में आया? इसमें डिक्शनरी बनाना है, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर एंटर करना है यहीं पर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये पहला फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो, पहले उसमें क्लास बनाया था, इसमें क्लास नहीं बनाया है, इसमें सिर्फ डिक्शनरी बनाया। गॉट इट? ओके, यस टू सर। द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप डिस्प्ले नाम रखो, डिस्प्ले रखो, पूरा लॉजिक वही है, इसलिए मैं लिखने वाला प्रॉब्लम नहीं करूंगा। क्या मतलब है लिखने का? लिखूंगा फिर चेंजेस आएंगे। डिस्प, अब देखो मैं जानबूझ के, मैं नहीं तो मैं ये नोटपैड वाली पूरी फाइल कॉपी करता, मगर एक साथ नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे पेस्ट, जस्ट ए मिनट, ये तो हो चुका है ना? फाइल है मेरी, पाइथन वाली का चलिए, ठीक है। डिस, ओके, ये डिस्प्ले रहे। इन दिस व्हाट वी आर डूइंग हियर, अगेन एम्प्टी लिया, इनिशियलाइजेशन तो करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन, आरबी रीड बाइनरी, ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट, फाइल ट्रू, वही चीजें। emp.pickle.load, कोई फर्क है? नहीं, अब इस बार अपन ने डिक्शनरी में वो फाइल लोड कर ली शायद। बेटा आप डिक्शनरी सोच ही क्यों रहे हो? मुझे तो ये समझ, आप चाहे ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है,
चाहे वो डिक्शनरी से हो चाहे मतलब वही ऑब्जेक्ट में लोड हाँ, कर तो लिया कुछ अपन भी ने वो फर्क नजर पूरा। नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, यस सर। अब देखिए आपका क्या होता था उसमें emp डॉट आउट किया था मैंने, यही फायदा है क्लास का कि वहां पे emp डॉट उसमें आउट कर, डायरेक्ट अब यहाँ पे फंक्शंस प्रिंट डिफाइन कर emp सकते करेंगे अपना डिक्शनरी फॉर्मेट में रिजल्ट देगा, या फिर मुझे एक एक इंडिविजुअली प्रिंट करना पड़ेगा। अभी मैं दोनों करके दिखाता हूँ। मैंने फिर क्या लिखा, फॉर आई इन emp। अच्छा, मैंने इसको ये वाला इसीलिए हटाया था कि पहले तो स्ट्रक्चर फॉर्म है। पहले एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 1 2 3, ठीक, इसको ले लेता हूँ ताकि पता चले कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, रन रन मॉड्यूल, ओके। बाइनरी फाइल या कुछ तो आएगा नहीं क्योंकि मेन लिखना है, मेन के बिना चलेगा कैसे। ch choice if ch equals to 1, लूपिंग लगा रहे हैं, काम करें लगा देनी पे शिफ्टिंग int भी लगाना पड़ेगा। ये रॉन्ग एडिट हो गया, while ch less than equals to कितनी choices थी, 5 कर ले। if ch equals to 1, क्या नाम था, create। elif ch equals to 2, yes, okay, ch enter your choice, enter your choice, run module, okay, error है, run, okay, enter your choice 1, employee number 1, Raza, yes, no, 9 exit, गड़बड़, वहाँ पे चॉइस नंबर की गड़बड़ है। If ch equals to 1, create, if ch equals to 2 days, क्या गड़बड़ है देखो भाई, ch int input enter your choice, ch जरा से में दिक्कत दे देता है। रन मॉड्यूल, चॉइस नंबर 1 क्रिएट ही नहीं, ठीक से 1 कुछ भी नाम, कुछ भी सैलरी, यस, चॉइस नंबर 2 कुछ भी नाम, चॉइस नंबर 2 डिस्प्ले। तो देखा आपने, ये डिक्शनरी फॉर्मेट में आया। यस सर, यस सर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब अपने को नहीं, प्रॉपर वे में रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया ताकि ये कमेंट आपको पता चल जाए। और इसको हटा के लूपिंग वाले से इंडिविजुअली भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बट लूप लगा लो तो अच्छी बात है ना। रन किया, रन मॉड्यूल, ओके, एंड चॉइस नंबर 2, क्या हो रहा है ये, सर वो शायद वो एंड वाला स्टेटमेंट, वो कॉमा एंड फिर देखता है कोलन, उससे शायद लाइन ब्रेक आ जाता है। नहीं, मगर वो रिजल्ट तो अलग दिखाना चाहिए। फिर से रन स्टोर जिस फॉर्मेट में हुआ है उससे क्या ये आ गया ना। गड़बड़ थी, वो पहले क्या हो रहा था फिर, पता मतलब? नहीं, कोई रीजन नहीं है, कुछ तो हुआ था।
ओके, हो सकता है मैंने एग्जिट करके रन नहीं किया था, समझे, उसी में थे ओह ना, यस सर, तो वो प्रीवियस यस सेव सर। नहीं हुआ था अच्छा के पास तो इसलिए ओके प्रोग्राम सेव करता है ना। अब इसके बाद जब री रन करता है तो आप देखो सेव करके रन करता है, मैंने री रन नहीं किया था इसलिए पुराना आया था, समझे ना, ये हुई यस सर, यस सर। रीजन तो होता ही है हर चीज का। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर, श्योर। ओके, अब इसी में आप सर्च वाला भी बना लो। मुझे देखो कुछ भी नहीं मेहनत करनी पड़ रही है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट, पूरे प्रोग्राम मैंने लिख रखे हैं। और इसको देखो मैं लिख भी सकता हूँ, इसी को इसको भी कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकता हूँ। ओके, सर वो मेन मेन्यू में अपन ने सर्च वाला तो डाला ही नहीं, तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा सर्च वाला। डाल दो। एलिफ क्रिएट दिस और सर्च। सर्च। enter your choice। ठीक है, यस सर। अब एक काम करो, पहले इतने प्रोग्राम या तो स्क्रीनशॉट लो या तो टाइम हो रहा है मेरा, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है, 11 बज चुके हैं। तो प्लीज नोट डाउन दिस, यस सर, import लिख लिया pickle सर। os create etc etc। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बाकी डिफाइन करके, और पता है नेक्स्ट चैप्टर आपका नेटवर्किंग होगा, तो वो डेफिनेशन पार्ट है। डू यू हैव बुक? यस सर। तो अब बुक लेके रखना, सर क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी सारी चीजें आपको लिखवा नहीं पाऊंगा, तो मैं मार्क कराऊंगा, तो प्लीज उसके तो लिए आज जो मतलब जो वो डेफिनेशन। पिछले पिछले टाइम ली थी पिछले साल, वही है, मतलब दूसरी लेनी है हाँ क्या हाँ सर? कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें ज्यादा ही है, कम नहीं है, 12th की। ठीक है, आप इसका सर उसमें 11th 12th अलग था या पूरा कंबाइंड था? मतलब आपने कहा था वो पूरी एक सिंगल बुक 11th 12th दोनों में चलेगी मतलब। नहीं नहीं नहीं, 12th की बुक ली थी आपने? वो वाइट मतलब। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12th की बुक है तो कोई प्रॉब्लम। जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको लिखने में आसानी रहेगी, इट इज रिकॉर्डेड, तो सर्च तक मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी आप पॉज तो कर ही सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में वीडियो चला के आराम से इसको नोट कर लीजिए। ओके, इतना यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। हाँ सर, वो लिख लिया, हाँ हो गया सर। ठीक है, so I'm stopping it, we'll meet in the next class, till then goodbye, have a nice day। थैंक यू सर।